We keep preaching to or rather, our Pradhan keeps preaching to the world wherever he goes. Like, we are the largest democracy on this planet, and yada yada whatsoever. We are the mother of democracy. This is the largest democracy on the face of the planet Earth. Crap like that. But after today, 20th July, what went down at the Jantar Mantar, to be brutally honest, we are no more than an autocracy जिसने डेमोक्रेसी का चोगा ओढ़ रखा है. आज 20 जुलाई है और पार्लियामेंट का पहला मानसून सेशन भी आज ही था, और वहीं से कुछ किलोमीटर दूर जंतर मंतर पे अपनी ही ये चुनी हुई सरकार, ये गद्दार, went berserk on these students, people who are protesting for the bare minimum. Legit, for the bare minimum. As you must have seen how these cops have went berserk with their लाठीज और टीयर गैस हो गया, धक्का मुक्की और गाली गलौज. Mind you, these are the cops, the very cops that are in place to protect the citizen. But हमारे देश में वैसा चलता नहीं है. Cops aren't there to protect the citizen. ये basically एक सरकारी बॉडीगार्ड बोल सकते हैं. These are for your MLAs, MPs और इन पावरफुल पीपल को जब अपना कुछ भी गंदा काम करवाना था, obviously that's where they use these forces. Otherwise, आज तक कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने पुलिस को देखा और तुम्हारे मन में ख्याल होगा कि आई फील सेफ? उल्टा होता है कि माना का एक सेट है ना, उसमें ऐसे कि हर भाई में पुलिस लोग अपनी बालकनी से वापस चले जाते हैं, पुलिस. सो यू गेट द आइडिया. आई एम हियर इन द कंफर्ट ऑफ माई होम एंड आई एम नो वन टू make a comment or any suggestion on whatever went down, whatever those brave hearts had to bear or had to go through today. कईयों के सिर खुल गए, हाथ टूट गए, कपड़े फाड़ दिए घसीट के. मतलब the brutality that the state has shown towards its own people really shows the mindset. And for what? Like, people out there are asking for the bare minimum. भाई नीट के पेपर लीक हो गया, भाई इतने लोगों ने सुसाइड कर लिए. You have to be answerable. If you're sitting there in power, you freaking pradhan, you have to be answerable, and people are just asking for the resignation. And personally, honestly, pradhan is just a stooge as every other minister in this government. I think it's the other pradhan that we need to be asking resignation from. That's just what I think. But then again, अपने कमरे में बैठ के ये बातें पेलना बहुत आसान बात होती है, and I'm not going to deny that. It's like asking for his resignation is like you're treating a symptom but not the disease. कि अभी ठीक कर लिया लेकिन बीमारी तो वही है ना, वही बीमारी है जो मेन. एक सिम्टम हटा दो, कल को दूसरा आ जाएगा और लाजमी है कि वो आएगा. एंड एज यू मस्ट हैव सीन लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक ऑल दीज बीट मिस्टर वांगचुक और CJP हो गए और जो बाकी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, दे वर कैरिंग आउट दिस प्रोटेस्ट इन द मोस्ट पार्लियामेंट्री, मोस्ट डेमोक्रेटिक वे पॉसिबल, इवन दो उनको कोई परमिशन नहीं दी. सरकार परमिशन क्यों नहीं देगी व्हेन पीपल आर मार्चिंग अगेंस्ट देम? एंड जैसा कि मैंने बोला, इट्स बेयरली अ डेमोक्रेसी, इट्स मोर लाइक एन ऑटोक्रेसी. ऑल्सो दिस गवर्नमेंट, दे ऑब्वियसली डोंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी. सिर्फ बातें हाँकनी आती है और डेमोक्रेसी चिल्लाना आता है. जहाँ पे बात क्रिटिसिज्म की आ जाती है और आंसरेबल, तो चलो वो तो ख्वाब ही है, इट्स सपना ही है, ख्वाब ही बोल सकते हैं. सरकार कहाँ ही आंसरेबल रहेगी. अभी थोड़े टाइम पहले राजनाथ सिंह ने तो बोला ही था दैट NDA की सरकार है, इसमें कोई इस्तीफ़ा नहीं देता भैया. The audacity. Honestly, our government, I don't think they understand democracy, either that or they just understand it too damn well that they don't even care about it. And I think in that regard, we just need to zoom out a bit and we just need to talk about the concept of prince. Now, in the past, I think I've consumed quite a lot of videos. Gives you an idea about two definitive ways or guides on how a ruler or a prince should run a state. एक साइड पे we've got चाणक्य, असली वाला, वो अखरोट नहीं. He wrote अर्थशास्त्र. This Chanakya was hardcore realist, but his core philosophy was that जो राजा है ना वो भी धर्म के नीचे है. And according to Chanakya, a ruler's ultimate goal is the welfare of the people. Chanakya explicitly warned against arrogance, and he gave a 4-step framework: sama, dana, भेद और दंड. Chanakya had strictly advised to use sama to talk and solve the root cause of the problem, especially for the marginalized and the weak, or the people, or basic general your population of your country, of your kingdom. And on the other hand, we've got the stud from Italy, Machiavelli, who wrote The Prince.
prince. I need to stop doing that. Machiavelli divorced morality from politics. अब उसके हिसाब से prince is above everything. जो उसका golden rule था वो यही था कि it is better to be feared than loved. And if you cannot be both, then a Machiavellian prince uses narrative rhetoric and absolute force to maintain power. अब जो उसके हिसाब से जो सिटीजन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रादर दे आर अ थ्रेट दैट यू नीड टू एलिमिनेट. चाणक्य के हिसाब से तो किंग है ही इज़ सर्वेंट ऑफ धर्म, और माकियावेली के हिसाब से ऑन टॉप. अगर गोभी को इस फ्रेमवर्क में रखे, आज के टाइम में रखे, तो खैर वो जो इंसान अपने आप को इंसान भी नहीं बोल सकते, जो अपने आप को ही नॉन बायोलॉजिकल बीइंग बुलाता है, और जो फॉलोअर्स है वो अपना भगवान बना दे रहे हैं. कोई विष्णु का अवतार बोल रहा है, कोई राम का अवतार बोल रहा है. जो डिल्यूजनल इतने ज़्यादा लोग, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है. अगर ये असल में एक चाणक्य नीति वाला अगर रूलर होता तो ऑब्वियसली पहले तो इतनी नौबत नहीं आती, और अगर यहाँ तक नौबत आती देन वुड हैव टेकन द स्टेप्स टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. और ऑब्वियसली लाठी और टीयर गैस तो वैसे ही नहीं, क्या कहते हैं, बरसाते इन लोगों पे. जो मैंने आज पढ़ा था उस हिसाब से भी मिस्टर वांगचुक इज स्टिल कंटिन्यूइंग द फास्ट. और इतने दिन हो गए हैं कि अभी तक मजाल है एनी पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी हैज़ स्पोकन अबाउट इट और हैज़ इवन लाइक अ स्लाइटेस्ट हिंट लाइक देयर इज़ अ पर्सन आउट देयर जो अनशन पे बैठा हुआ, उससे बात ही कर ले, सुन ही ले, अगला बोलना या चाह रहा है बढ़ना ही. क्योंकि अगला चाणक्य की नीति नहीं ना फॉलो करता, अगला माकियावेली का. And the fact that this guy is just peacefully protesting and अनशन पे बैठे हुए हैं there, and the cops और so called cops जो भी गुंडे दंगई आए थे उठा के कैसे घसीट के ले गए. टेक्स्ट बुक माकियावेली, जो माकियावेली कहता था ना कि कंट्रोल द नैरेटिव एंड रूल बाय फियर, लेजिट एकदम उन्हीं फुटस्टेप्स में है भाई साहब. स्टेट ने मतलब प्रॉपर डंडा ही दिया हुआ है, वो चाहे फिर तुम्हारा एथेनॉल वाले सेंस में हो, गन्ना हो, या फिर आज प्रोटेस्ट में जो देख लिया हो फाइबर के या बम्बू के या जिस चीज़ के भी डंडे थे, लेजिट. और ऐसा भी नहीं है कि इट वॉज लाइक द वेरी लास्ट रिजॉर्ट. सबसे पहला दिमाग में आया ही कि हम तो लाठी ही बरसाएंगे, फिर टीयर गैस पे आ गए, घसीटो, मारो, फाड़ो, रगड़ो, MRF, मारो, रगड़ो, फाड़ो. आई थिंक विद दिस आइडियोलॉजी कॉप्स वर आउट देयर. एंड ऑब्वियसली जो बिजार बात, तो खैर बिजार बोल लो, सही बोल लो, जो भी है, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, वी ऑल नो इट विद दैट वन CJI. और आज आई थिंक शाम के टाइम नड्डा मेट द CJP डेलीगेशन, देयर वाज सौरभ दास एंड दिस अनदर गाय. लेकिन उसमें भी कोई कमिटमेंट या फिर कुछ बोला नहीं है, बस एक कुछ पेपर पकड़ाया है, वो बस दिखाया है, फ़ोटो खिंचवाया है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, के डंडे बरसा दिए. आई थिंक उसको कूल डाउन करने के लिए, जो कि नहीं होने वाला, होपफुली ना हो. बट देन अगेन यहाँ से बैठ के बोलना बहुत आसान है. कूडोज टू पीपल आउट देयर हु हैव ट्रैवल्ड टू दैट प्लेस एंड डिड व्हाट दे डिड टुडे. वैसे बहुत बिजार है, 2026 है, जहाँ दुनिया में क्या कहते, चाइना हो गया, तुम्हारा US हो गया, AI की होड़ में लगे हुए हैं विद ऑल दैट, यू नो, ट्राइंग टू बेटर थिंग्स इन. ठीक है, इसमें अब अपने पहलू है हर चीज़ के, परफेक्ट कुछ नहीं है, बट जहाँ तक बात की जाए टू प्रोवाइड द बेसिक और द बेयर मिनिमम, 2026 की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे पीपल हैव टू लिटरली फाइट दी गवर्नमेंट कि भाई एटलीस्ट पेपर तो लीक मत करवाओ. तो बेयर मिनिमम चीज़ें नहीं हो पा रही इनसे, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं संभाली जा रही है. इट इज़ बिजार व्हाट दिस नेशन हैज़ बिन ब्रॉट डाउन टू. From 2014 to 2026, the utter joke and the failure at every fucking step of this government, it's just beyond me. और जितना इसके बारे में सोचो ना, जितना तुम पढ़ो, जितना देखो, उतना ज़्यादा से खून खौलता है और गुस्सा आता है, दिमाग ख़राब होता है. I think I'd just like to put this one thing, that even though this freaking ruler is ruling by the Machiavellian principles, the students who stood out there, they haven't forgotten to fight for their dharma. So really kudos to that. There are a lot of people out there who are pretending everything is fine or aren't even budged a little, and media is obviously going to do what they do best. They're going to bury it, they're going to shift the narrative, they're going to make these students that funded by this, funded by that, political parties, opposition ये कर रही है, वो कर रही है. मर जाओ कहीं जाके.